તો દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં એક બાદ એક મોટા ઘટસ્ફોટ થઈ રહ્યા છે, જે એજન્સીઓ તપાસ કરી રહી છે, તેમાંથી અલગ અલગ વિગતો મળી રહી છે અને હવે સૂત્રો તરફથી જાણકારી મળી કે આતંકી નેક્સસનો દેશભરમાં એક સાથે 32 બ્લાસ્ટનો પ્લાન હતો। વિસ્ફોટક સામગ્રી સાથે સંખ્યાબંધ કાર બ્લાસ્ટનો પ્લાન હતો। 6 ડિસેમ્બરે દેશભરમાં આતંકી હુમલાની યોજના હતી। કાર બ્લાસ્ટ માટે જૂની કારનું મોડિફિકેશન કરાતું હતું। અત્યાર સુધીમાં આવી 4 શંકાસ્પદ કાર પણ ઝડપી લેવામાં આવી છે। તો મોટા સમાચાર એ કે એક સાથે 32 જગ્યાએ બોમ્બ બ્લાસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને કાર બ્લાસ્ટમાંથી જૂની કાર લઈને તેને મોડિફાઈ કરવામાં આવતી હતી અને આવી જ મોડિફાઈ કરેલી અલગ અલગ 4 કાર પોલીસ તપાસમાં મળી આવી છે। વ્હાઇટ કોલર ટેરર મોડ્યુલ પર વધુ એક સમાચાર મળી રહ્યા છે। કાશ્મીરમાં વોન્ટેડ ડોક્ટર મુઝમિલને ઝડપી લેવા કવાયત હાથ ધરાઈ। જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ રેડ કોર્નર નોટિસ ઇસ્યુ કરશે। ઇન્ટરપોલના સંપર્કમાં જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ છે। ડોક્ટર મુઝમિલ છે દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ ફરાર। ડોક્ટર મુઝમિલને ઝડપવા હવે કવાયત હાથ ધરાઈ છે। જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ રેડ કોર્નર નોટિસ ઇસ્યુ કરશે। ઇન્ટરપોલના સંપર્કમાં છે જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ। ડોક્ટર મુઝમિલ છે દિલ્હી બ્લાસ્ટ બાદ ફરાર। હવે તેની સામે રેડ કોર્નર નોટિસ ઇસ્યુ થવા જઈ રહી છે। તો દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસની તપાસમાં હવે ઈડીની પણ એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે। અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટી તપાસ એજન્સીની રડારમાં છે। યુનિવર્સિટીના નાણાકીય વ્યવહારની ઈડી તપાસ કરશે। અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીની માન્યતા રદ પણ થઈ શકે છે ને કે અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીની નોટિસ પણ ફટકારી છે। યુનિવર્સિટીમાં ભણાવતા ડોક્ટર પાસેથી વિસ્ફોટક મળ્યા હતા। યુનિવર્સિટીને 7 દિવસમાં જવાબ આપવા નોટિસ આપવામાં આવી છે। દિલ્હી વિસ્ફોટ કેસને લઈ મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ડોક્ટર ઉમર નબી મસ્જિદ પાસે જોવા મળ્યો હતો। વિસ્ફોટ પહેલા ઉમર મસ્જિદમાં ગયો હોવાની પણ આશંકા છે। સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા તપાસ ચાલી રહી છે। ડોક્ટર ઉમર નબી કોને મળ્યો તે દિશામાં તપાસ થઈ રહી છે। સીસીટીવી ફૂટેજમાં ડોક્ટર ઉમર નબી દેખાઈ રહ્યો છે। આ ખૂબ જ મહત્વના સીસીટીવી સાબિત થવાના છે। આજના દિવસમાં 2 એવા સીસીટીવી સામે આવે। એક એવો સીસીટીવી કે જેમાં તે ચાલી રહ્યો છે રસ્તા પર અને બીજા સીસીટીવી કે જ્યારે તે દિલ્હીમાં પ્રવેશ કરે છે એમાં તે વારંવાર કેમેરા સામે પણ જોઈ રહ્યો છે। આ અંગે તમામ જાણકારી આપશે અમારી સાથે दिल्ली से संवाददाता देवनाथ पांडे लाइव जुड़ा गया है। देवनाथ, बताएं कि फिलहाल आज के दिन में क्या अपडेट्स आई, जो तहकीकात चल रही है वो किस दिशा में चल रही है और आज के दिन में क्या क्या और इंफॉर्मेशन मिली? देखिए, बिल्कुल विकास, साफ तौर से इस पूरे मामले में आज चौथे दिन भी लगातार खुलासे पे खुलासे हुए। जैसा एक सीसीटीवी फुटेज आज वायरल हुआ जिसमें जब आतंकी डॉक्टर उमर नबी दिल्ली की सीमा में दाखिल होता है, उसके बाद जिस टोल प्लाजा से वो गुजरता है उस टोल प्लाजा पे सबसे पहले वो कैमरे की तरफ देखता है, क्योंकि उसे पता था कि एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं। शायद इसीलिए उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, अपना चेहरा ढक रखा था। उसके बाद वो जिन जिन रास्तों से होता हुआ आता है, अब सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरा एक फुटेज और वायरल हुआ है, जैसा हमने कल जिक्र किया था कि एक मस्जिद है जिसमें वो जामा मस्जिद के बिल्कुल 2 से 2.5 किलोमीटर अंतराल पे एक मस्जिद और आती है, जिसका कहीं ना कहीं एक सीधा लिंक जुड़ रहा है, क्योंकि कल रात हम वहां पर जब गए थे तो अंदर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन कैमरों में वो कैद हुआ है आता हुआ, और दूसरा उन सड़कों पर भी उस मस्जिद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उस मस्जिद में वो क्या करने के लिए गया था, क्योंकि जहां पर उसकी गाड़ी पार्क हुई थी, जिस पार्किंग में सुनहरी बाग मस्जिद के सामने, तो सामने सुनहरी मस्जिद था, वहां पे अगर उसे नमाज पढ़ना होता तो वहीं पर जाकर पढ़ता हो, लेकिन उसने उस मस्जिद को चुना जहां पर ना कोई गाड़ी जा सकती है ना कोई बाइक जा सकती है, यानी आपको 25 से 30 मिनट पैदल ही जाना पड़ेगा। तो वहां जाता है, वहां किसी से मुलाकात करता है और 10 मिनट के बाद ही वो वहां से निकलता है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अभी भी जांच पड़ताल कर रही है। तीसरा, आज भी इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित भाई शाह ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, और इस बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आतंकियों पर सीधा प्रहार करने वाले होंगे। और आज एक और जानकारी निकलकर सामने आई, अब से करीब 1.5 से 2 घंटे पहले जहां पर ये पूरा ब्लास्ट हुआ उसके बिल्कुल 400 मीटर के आसपास में 2 बड़े बड़े मंदिर हैं।
एक जैन मंदिर है और दूसरा एक गौरी शंकर मंदिर है, जो हम आपको लगातार पहले दिन से दिखा रहे हैं। इन मंदिर को क्रॉस करता हुआ, पहले दिन हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पुजारी जो वहां पर होते हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इंसानी शरीर का कुछ हिस्सा वहां से छिटक कर यहाँ आया था। हालांकि उन्होंने कैमरे पर ये नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात कही थी। लेकिन आज मंदिर के पीछे वाली जो दुकानें हैं, उनके छत पर एक हाथ मिलता है, एक कटा हुआ सर मिलता है। उसके बाद पुलिस उन्हें भी अपने कब्जे में लेती है और शिनाख्त वगैरह करने की कोशिश अब की जा रही है। यानी कि साफ साफ देखें तो ये मामला इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी प्लानिंग आतंकवादी कर रहे थे। और आप जब इनके इलाके में जाएंगे तो कम से कम ये एहसास होने लगा है कि जैसे कल हमारे कैमरा पर्सन जब वहां जा रहे थे तो हमें इस तरह से घूर कर देखा जा रहा था, और जब हम मस्जिद के पास पहुंचे तो हमें बकायदा ये कहा गया कि अगर मस्जिद की तरफ आपका कैमरा घूमा तो आपका कैमरा तोड़ देंगे। मतलब इस पर भी ये इस तरह से बात कर रहे हैं, मस्जिद को आप कहीं से कवर नहीं कर सकते हैं। हालांकि वहां से फिर हम अपना रिपोर्ट वगैरह बना के वहां से जब निकलते हैं और उसके बाद आज एक के बाद एक कई खुलासे इस सब केस में होते हैं, तो अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक डॉक्टर अभिषेक हैं, उनसे भी पूछताछ हुई, क्योंकि डॉक्टर अभिषेक इसी मामले में शामिल डॉक्टर आरिफ का रूममेट था। डॉक्टर आरिफ इस वक्त फरार चल रहा है, लेकिन अभिषेक ने कहा कि मेरा आरिफ से किसी भी तरह का कोई मतलब संबंध नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किराए पर रहता था और वो मेरा रूममेट था। तो कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों के साथ वो लोग भी पिसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोग इनसे या तो कभी बात करते थे या इनके साथ रहते थे। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर अभिषेक डॉक्टर आरिफ के साथ रहता हो तो डॉक्टर आरिफ अभिषेक को कुछ बताया ना हो। तो इस मामले में अभिषेक से भी पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि शाम होते होते इस केस में और क्या कुछ खुलासा बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, आभार देवनाथ, તમામ જાણકારી આપવા બદલ।